وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کرامات اولیاء آج کا حلقہ کشف المحجوب، کتاب کشف المحجوب میں اولیاء کی کرامات کے اوپر تذکرہ ہے کہ جس طرح انبیاء کے معجزات حق ہیں، اسی طرح اولیاء کی کرامات بھی حق ہیں، اور اس میں انہوں نے کئی کرامات کا تذکرہ کیا ہے۔ آصف بن برخیہ کی کرامت کی خبر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ضرورت کہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پر پہنچنے سے پہلے آپ کے سامنے حاضر کر دیں، اور اللہ جل شانہ نے آصف بن برخیہ کو شرف اس کی کرامت لوگوں پر ظاہر کرنا، اہل زمانہ کو یہ جتانا بتانا تھا کہ اولیاء کی کرامات جائز ہیں۔ تو حضرت سلیمان نے فرمایا، کون ہے جو بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے حاضر کرے؟ اس واقعے کو حکایت کر کے ہمیں خبر دی کہ جنوں میں سے ایک دیو نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس سے پہلے لا سکتا ہوں کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، اس سے جلدی چاہیے۔ تو حضرت آصف بن برقیہ نے کہا، میں آپ کی خدمت میں پلک چھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ ان کی اس بات سے حضرت سلیمان ناراض نہیں ہوئے، نہ ہی انکار فرمایا، نہ آپ کو محال معلوم ہوا کہ اس صورت سے بھی کہ معجزہ نہ تھا، کیونکہ آصف پیغمبر نہ تھے، اس لیے لا محالہ کرامت ہوگی۔ اگر وہ معجزہ ہوتا تو سلیمان علیہ السلام سے اس کا ظاہر ہونا لازم ہوتا۔ کرامات اولیاء کی کرامات، اور یہ حقیقت ہے کہ اولیاء کی کرامات قیامت تک چلتی رہیں گی، اور قیامت تک رہیں گی اولیاء کی کرامات۔ سچائی اور حقیقت ہمیشہ رہے گی، سچائی اور حقیقت ہمیشہ رہے گی، اور سچائی اور حقیقت کا اظہار بھی ہمیشہ رہے گا۔ اس کو ذہن نشین رکھیں گے، اس کا اظہار بھی ہمیشہ رہے گا اور وہ بھی ہمیشہ رہے گی، اور یہ اس لیے رہے گی کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کے دلوں کو تقویت دیتے ہیں۔ انسان بعض اوقات کچھ چیزیں دیکھ کے مانتا ہے، اس کو عین الیقین کہتے ہیں۔ عین کہتے ہیں آنکھوں کو، آنکھوں سے دیکھی چیز، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز دیکھ کے مانے۔ اگر ہر چیز دیکھ کے مانی جاتی تو اللہ سامنے آ جاتا، اللہ کے فرشتے سامنے آتے، اللہ کی رحمت سامنے آتی، عذاب سامنے ہوتا، قبر مٹی کا ڈھیر نہ نظر آتا، بلکہ اس کے اندر کا نظام اللہ کھول دیتے۔ ہر چیز دیکھنا ضروری نہیں۔ اللہ پاک نے بہت سے نظام اپنے اور بہت سی ترتیب ایسی ہے جو یؤمنون بالغیب پہ رکھی ہے، کہ غیب پہ میرے رب کا یقین ہو، اور وہ غیب پہ یقین کر کے چلے۔ میرا اللہ غیب پہ یقین بندہ رکھ کے چلے، اللہ پہ غیب کا یقین رکھ کے چلے کہ اللہ کے اوپر میرا یقین ہے کہ اللہ ہے اور نظر نہیں آتا۔ یہ سبق پہلے دن سے دیا ہے، یاد رکھیے گا۔ کرامات کا ظہور کبھی کبھار ہوتا ہے، اللہ پاک کرامات کا ظہور زیادہ ہونے نہیں دیتے، وہ اس لیے کبھی کبھار ہوتا ہے
کہ بندہ یقین کر لے کہ اللہ کا یہ نظام ہے، ورنہ ہر نظام پوشیدہ ہے، ہر نظام چھپا ہوا ہے، ہر نظام پردے میں ہے۔ کرامات کا اظہار زیادہ کبھی نہیں ہوا۔ جتنے بھی اولیاء صالحین گزرے ہیں ان میں کرامات کا اظہار نہیں ہوا۔ قرآن نے آصف بن برخیہ کا تذکرہ کیا جو بلقیس کا تخت لائے، ان کی ایک کرامت کا تذکرہ کیا ہے، اور الفاظ بعض محدثین نے لکھے ہیں کہ اس میں جو لفظ اس نے پڑھا تھا اس کے پاس جو اللہ کے علم میں سے علم تھا وہ احین اشراحین تھا، اور احین اشراحین ترجمہ ہے یا حیو یا قیوم کا۔ اس کے پاس یا حیو یا قیوم کا علم تھا، اس کے پاس یا حیو یا قیوم کے راز تھے، اس کے پاس یا حیو یا قیوم کی گہرائی تھی، گہرائی تھی۔ میں نے اب بھی وہ کنویں دیکھے ہیں، ٹھٹھا میں کنویں ہیں، اچ میں کنویں ہیں، کئی جگہ میں نے کنویں دیکھے ہیں۔ پرانے کنویں ہوتے تھے، نیچے اتر کے پانی بھرتے تھے۔ میں نے یہ کنویں بخارا میں بھی دیکھے ہیں، پرانے نیچے کنویں میں پانی بھرتے تھے، اور جو کنویں خشک ہو جاتے تھے وہ بطور چلہ گاہیں استعمال ہوتی تھی، اس کے اندر غاریں ہوتی تھیں، وہ چلہ گاہوں کے طور پہ استعمال ہوتی تھی۔ دیکھو، ایک ہے لفظ، ایک ہے اس کی حقیقت۔ یہ میری بات غور سے سنیے گا، ایک ہے لفظ، ایک ہے اس کی حقیقت۔ یا حیو یا قیوم اللہ کے مبارک نام ہے، پڑھیں گے ثواب ہے، لیکن اس کے کمالات اور اس کی معرفت، اس کی تاثیر اور اس کی طاقت یہ کھل جائے، یہ کھل جائے، اس کے لیے اللہ کہتا ہے مجاہدہ کرو، یہ کھل جائے، میرے اوپر کھل جائے، آپ پہ کھل جائے۔ تنہائیوں میں بیٹھ کے چلے کرتے تھے، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشی ہوتی، تنہائیوں میں بیٹھ کے، تنہائیوں میں بیٹھ کے۔ کہنے لگا جہاں مجمع ہو وہاں میں تنہائیاں کیسے تلاش کروں؟ کہا یہ بتا، تجھے گھر کا تصور، اولاد کا تصور، اپنی کسی محبوب چیز کا تصور جب ہوتا ہے تو وہ صرف تجھے پتا ہوتا ہے یا کسی اور کو بھی؟ کہا صرف مجھے پتا ہوتا ہے۔ کہا مجمع میں بھی تنہائیاں پائی جا سکتی ہیں، مجمع بہت بڑا ہے، اس میں بھی تنہائیاں پائی جا سکتی ہیں، اس میں بھی انسان اپنے آپ کو تنہائیوں میں لا سکتا ہے۔ جس کو ملا ہے تنہائیوں سے ملا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مجمع سے ہٹ کے کہیں اور چلے جائیں۔ جنگل کی دنیا اس دین میں ویسے ہی نہیں ہے رہبانیت۔ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ رہنا سب کے ساتھ ہے پر سب سے جدا ہے۔ خواب آپ کے ساتھ جو بندہ سو رہا، جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں، کیا وہ دیکھتے ہیں؟ وہ خواب آپ دیکھ رہے ہیں۔ روحانیت کی دنیا میں اگر تنہائی میں نہ آئے، تنہائی میں نہ آئے تو روحانیت اندر جذب نہیں ہوگی، اور مجاہدے میں نہ آئے کبھی جذب نہیں ہوگی۔ میں نے 2 دن پہلے پوچھا، میرے ساتھ
तस्बीह खाने के इसी में बैठे हैं बंदे। मैंने कहा सुबह मैंने क्या दर्श दिया था, कह रहा हमें पता नहीं, हम सो रहे थे। अभी भी बंदे सो रहे हैं, वो बंदा टेक लगा के सो रहे हैं, वो टेक लगा के सो रहे हैं, वो टेक लगा के सो। रूहानियत बगैर मुजाहिदे और कुर्बानी में जज्ब नहीं होगी, नहीं होगी। इसके लिए कुएं, इसके लिए गारें, इसके लिए दरियाओं के बीच की खुश्क जगह जहां इंसानी पहुंच ना हो, जहां जिंदगी ना हो। फिर अल्लाह पाक अपने नामों की मार्फत उन पे खोलते हैं, मार्फत खोलते हैं। बंदा कुर्बानी करे और अल्लाह ना दे। एक अल्लाह वाले थे, उनकी महफिल होती थी, सुबह सुबह महफिल होती थी, और महफिल के बाद कुछ लोगों के सर पे हाथ रखते थे, उसके 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 ऐसे हाथ रखते थे, और हाथ रख के कहते थे 40 साल और कुर्बानी करो फिर वापस आना, 40 साल और कुर्बानी करो फिर वापस आना। पूछते थे हजरत क्यों? फरमाया आज अल्लाह की रहमत बरसी थी, तू गफलत में था, वो रहमत तुझ पे नहीं आई, किसी और पे आई है। और अगली बात फरमाते थे, तू महरूम रहमत है, मेरी महफिल में ना आया कर, कहीं तेरी वजह से दूसरे महरूम ना हो जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, बकायदा बंदे खड़े होते थे, हबशी गुलाम होते थे, जिसको देखते थे महफिल की थोड़ी सी बेअदबी है, हुक्म होता था उसको टांगों और बाजों से पकड़ के महफिल के बाहर फेंक देते थे। उसकी हड्डी टूटे, उसकी कमर टूटे, उसकी कुछ हो जाए, बेअदबी पसंद नहीं फरमाते थे। हत्ता कि यहां तक राह चलते हुए एक बंदे ने पूछा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की ये हदीस कैसे है? फरमाया तूने बेअदबी की है, मेरे हजूर के फरमान को तूने इतने बेअदबी से लिया। नबी के फरमान की बेअदबी पे शरन इतने कोड़े होते हैं। और पूछा बादशाह ने, या दुनिया में खा ले फिर आखिरत के लिए तैयार हो जा। उसने कि ये दुनिया में कोड़े मारे, उसको कोड़े मारे गए। और बादशाह थोड़ी सी बेअदबी महसूस करते थे, थोड़ी सी बेअदबी। उस बंदे को ये नहीं कहते थे उठ के चला जाओ। महफिल को, रूहानियत की महफिल को जितना अदब दिया जाएगा, उतना अंदर उलूम और मार्फत खुलेंगे, खुलेंगे। और फिर एक दफा पढ़ेगा या हय्यु या कय्यूम। क्यों कहते हैं तर्क जलाली, तर्क जमाली, तर्क लज्जात, तर्क हैवानात, तर्क शहवात, ये चीजें छोड़ दो, ये चीजें छोड़ दो, ये चीजें छोड़ दो, गोश्त छोड़ दो, लज्जतें छोड़ दो, शोरबा छोड़ दो, दो चादरें पहन लो, तारीक कमरा हो, बंद कमरा हो, उसमें अंधेरा हो, उसमें तन्हाई हो। क्यों कहते हैं? इन सारी चीजों से मौजूद तवज्जो बने हर तरफ से हटके, कमरे में नक्शो निगार ना हो, कमरे में शीशा तेरा अक्स नजर ना आए। सारी चीजों से मुराद, सारे मकसद से मुराद सिर्फ ये है कि तुझे सिर्फ एक हकीकत नजर आए, एक हकीकत नजर आए, एक सच्चाई नजर आए, एक हकीकत नजर आए, और वो अल्लाह की हकीकत हो। यानी आप ये देखें, फरमाया मेरी महफिल में ना आया कर, तो उन लोगों में से है जिसके ऊपर अल्लाह की रहमत मुतवज्जे नहीं हुई, आई थी हट गई। जा 40 साल पहले मुजाहिदे कर, फिर मेरे पास आना।
پھر میرے پاس آ، پھر میرے پاس آ. کہا کہ تو میرے پاس آیا کس لیے تھا؟ پوچھا حضرت اللہ اللہ سیکھنے کے لیے. کہا کہ اللہ نام، اللہ کا نام اللہ کی رحمت کے بغیر مل سکتا ہے؟ کہا نہیں. کہا آخری وقت میں رحمت کے بغیر کلمہ مل سکتا ہے؟ کہا نہیں. کہا جنت کس بنیاد پہ؟ کہا رحمت کی بنیاد پہ. کہا رزق محنت کی بنیاد پہ یا رحمت کی بنیاد پہ؟ کہا رزق پہ محنت شرط ہے پر بنیاد رحمت ہے. تو کہا تو رحمت آئی تھی، تو غافل تھا، ہٹ گئی تجھ سے. رحمت آئی تھی، اس وقت تو غافل تھا، اور تجھ سے رحمت ہٹ گئی، تجھ سے رحمت دور ہو گئی. تو میری محفل میں نہ بیٹھا کر. پھر لوگ اصرار کرتے تھے. حضرت نے کیا کیا تھا؟ پیچھے ایک 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 نشان لگا ہوا تھا، پیچھے اس نشان میں ان لوگوں کو بٹھاتے تھے، پیچھے بٹھاتے تھے، مجمع میں نہیں بٹھاتے تھے. بعض اللہ والوں کی یہ اتنی احتیاط ہے. بعض کی احتیاط یہ ہے کہ مجمع میں بٹھاؤ، شاید اس کی غفلت رحمت کی وجہ سے عطا میں بدل جائے. بعض یہ ہے، بعض کہتے ہیں نہ اب تو یہاں نہ بیٹھ، اب تو پیچھے بیٹھ. اگر میں چاہتا ہوں، ہم چاہتے ہیں ہم پہ روحانیت کے اسرار کھولیں، روحانیت کی چابیاں ملیں، روحانیت کے خزانے ملیں، اور روحانیت کی طاقتیں اور تاثیریں ہم پہ کھلیں، ملیں، یہ مجاہدے کے بغیر نہیں ملیں گی، قربانی کے بغیر نہیں ملیں گی. یہ چیز مجاہدے اور قربانی پہ ملے گی. یہ حقیقت ہے. میرے پاس ایک صاحب ابھی بھی یہاں موجود ہے، کہتا ہے 7واں رمضان ہے میرے پاس ملے مجھے، 7واں رمضان ہے میں یہاں آ رہا ہوں. 7واں رمضان. کہنے لگے جب چوتھا رمضان تھا تو میں ایک دفعہ رمضان گزار کے یہاں سے گیا، رمضان گزار کے یہاں سے گیا، وظیفے کرتے کرتے ایک دفعہ میں سو گیا، وظیفے کرتے کرتے. تو کہا کہ خواب میں ایک جماعت آئی، یعنی اللہ والوں کی ایک جماعت آئی، اور مجھ سے کہنے لگے، مجھ سے فرمانے لگے ہم نے تو تجھے دعائیں کرا کرا کے وہاں بھیجا تھا، اور تو وہاں اپنی غفلت کے لمحے گزار کے آیا ہے، اب وہاں کا شکوہ کرے گا یا اپنی ذات کا ماتم کرے گا؟ اپنی ذات کو روئے گا کہ میں نے وہاں غفلت کا وقت گزارا، غفلت کا وقت گزارا. شیخ شبلی فرماتے ہیں جس نے مجھ سے 3 چیزیں لینی ہے: معرفت کا برتن، ولایت کا برتن، دولت کا برتن. 2، پہلا کس کا برتن؟ دوسرا دولت کا، اور تیسرا آخری وقت میں خاتمے کا، یعنی جنت کا. یہ 3 برتن کس نے لینے ہیں؟ لوگ کہتے تھے حضرت ہم نے لینے ہیں. فرمایا میری صبح کی محفل میں بیٹھا کرو ایسے جیسے کانٹوں پہ بیٹھتے. جس نے 3 برتن لینے ہیں، پہلا برتن معرفت، ولایت کا، جو ولی بننا چاہتا ہے، اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے. دوسرا برتن دولت کا، رزق، دولت، رشتے، گھر، عطا بے بہا. اور تیسرا برتن جنت کا، آخری وقت میں خاتمہ. کہا یہ 3 برتن کوئی ہے مجھ سے لینا چاہتا ہے؟ یہ بات کس نے فرمائی؟ شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ نے. لینا چاہتے ہیں
तो फरमाया सुबह की मेरी महफिल में ऐसे बैठो जैसे कांटों में बैठते। कांटों में बंदा कैसे बेचैन बैठेगा, कोई कांटा इधर चुभेगा, कोई इधर चुभेगा। क्या ख्याल है कांटों पे बैठने वाला कोई शख्स ऐसा होगा? अब देखा मेरी बातें हो रही, अभी भी सो रही है, दुनिया सो रही है। अल्लाह अकबर। दुख होता है, बहुत दुख होता है। कई दफा सोचा मैं सुबह ना आया करूं, किसी को कहूं तो सुबह का बयान करके दुआ करा के उनको सुला दिया कर। कई दफा सोचा मैं। आप महसूस करें पूरा रमजान हो गया मुझे सुबह उठाते उठाते, आपको है पूरा रमजान, आधा रमजान हो गया। और सुबह अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर बहुत सी चीजें खुलती हैं, लेकिन सोने वाले मेरे उस चीजों को दबा देते हैं, खींच देते हैं। अल्लाह। या तो वो जब हुक्म दे, जब सोने वाला बंदे खड़े करूं, उनको उठा के उधर भेज दे। हाँ भाई इसको उठा, उसको उधर भेज, इसको उठा उधर भेज। दरमियान में 8-10 बंदे खड़े कर दो कल से। इसको आप सख्ती कहेंगे, इसको कहें जी वहां सख्ती बड़ी है, हालांकि ये सख्ती नहीं है, ये अता का वक्त है। उस्ताद कहता है दीवार के साथ खड़ा होकर सबक याद कर, सख्ती कहेंगे या उस्ताद की शफकत कहेंगे? कहा कि अगर 3 बर्तन लेना चाहते हो तो सुबह मेरी महफिल में ऐसे बैठो जैसे कांटों में बैठते। और जो सुबह बर्तन में बख्त मिलता है, दौलत मिलती है, रिस्क मिलता है, अल्लाह। और मेरा तजर्बा है ज्यादा वही सोते हैं जो ज्यादा सोते हैं। लफ्ज समझ गए? दिन में 4-5 दफा जो सोते हैं ज्यादा वही सोते हैं। नींद का गलबा बढ़ता चला जाता है। मेरे यहां एक साहब आए, कबूलियत खाने में उस वक्त तस्बीह खाना होता था। वो 18 घंटे सोते थे। कहते थे मैं अगर कम सोऊं पेट खराब हो जाता था, बुखार हो जाता था, तबीयत खराब। कहने लगे मैंने अपनी नींद इतनी बढ़ा ली है, 18 घंटे सोता था बंदा, मेरी आंखों के सामने वो बीमार हो जाता था। याद है आपका बात? बीमार हो जाता था। 3 बर्तन जिसने लेने हैं, आसिफ बिन बरखिया का तस्करा आज जो हुआ है ऐसे नहीं हुआ। अल्लाह ने उसे अपने इल्म में से इल्म दिया, उस पे इल्म खुला। या हय्यो या कय्यूम उस पे खुला। और उसने सिर्फ एक दफा पढ़ा, तरफत आइन, आंख झपकना। ये देखो, आंख की पुतली से पुतली टकराई, इसको कहते हैं आंख तरफत आइन। बस इतने पल के अंदर सब कुछ हो गया था। और हुआ किसकी निगरानी में? उस नबी की निगरानी में जिसको अल्लाह जल्ल शानहू ने इक्तदार की इंतहा दी थी। रब्ब फिरली व हबली मुल्कन ला ला यंबगी लिअहदिन मिन बादि इन्नका अंतल वहाब। मौला आज तूने जो मुझे मुल्क दिया है ये किसी और को ना देना। अल्लाह ने कहा ठीक है। उस नबी जिसकी हवाएं जिन्नात ताबे, जिसके साथ निजाम ताबे है, उस नबी अलैहिस्सलाम की महफिल में बैठा हुआ उनका एक गुलाम, उसने अपनी जिंदगी कुर्बानी और मुजाहिदों में गुजारी, कुर्बानी और मुजाहिदों में गुजारी, कुर्बानी और मुजाहिदे में गुजारी, कुर्बानी और मुजाहिदे में गुजारी। बस एक दफा पढ़ा, या हय्यो या कय्यूम। मैं कहूं मैं खुराक भी डबल खाऊं, आराम भी डबल करूं, और या हय्यो या कय्यूम मुझ पे खुल भी जाए। और सुबह जिस वक्त 3 बर्तन मिलने का वक्त है, एक रिस्क का,
एक मार्फत का, एक जन्नत का, 3 बर्तन को मिलने का वक्त है। उस वक्त मैं हैरान होंगे, उस वक्त मैं दर्स में दूं, जगाऊं भी सही साथ, कभी उसको कहूं, कभी उसको कहूं, कभी उसको कहूं, साथ बंदे भी जगाऊं। मुझे शर्म आती है, मुझे एहसास होता है, और बाजों का दुखी हो जाता हूं। क्यों होता हूं? इनका कितनी दूर से सफर करके आए और खाली चले गए तो दुख होगा, और फकीर के दर से खाली गए, फकीर के दर से खाली। आज के सबक में एक बहुत बड़ा गहरा सबक है, आज के सबक में एक बहुत बड़ा गहरा सबक है। अगर 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 कोई चीज हासिल करनी है तो गहराई में जाना होगा। ये बताएं, पानी जमीन से 100 फुट पे निकले, आप 10-10 फुट के 10 गड्ढे कर दे, पानी निकलेगा? 10-10 फुट के 10 गड्ढे कर दे, जब तक के 100 फुट का एक ही गड्ढा नहीं होगा, पानी नहीं निकलेगा। जब तक कुर्बानी वो नहीं होगी जो मेरे रब को मतलूब है, मेरे अल्लाह को जो मतलूब कुर्बानी है, जब तक वो नहीं होगी बात नहीं बनेगी। 40 साल और गुजार ले तो फिर। वो कहने लगे, जब मेरा चौथा रमजान था ना, उस चौथे रमजान के बाद मुझे ख्वाब में जो उनकी तरफ से बातें मिली, कहा कि मैं सारा साल रोता रहा कि आइंदा रमजान तस्बीह खाने में मैंने कैसा गुजारा। अभी भी वो साहब मेरे सामने बैठे हैं और वाकई वो बंदा रमजान गुजारने का हक अदा कर रहा है। खवातीन को कोई हाथ लगा के देखे, लड़ पड़ती हैं। वो कहती है, खिदमत वाली, हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। ये वक्त है, ये लम्हा है, इसमें उलूम और मार्फत खुलते हैं, इसमें रिस्क के दरवाजे खुलते हैं, इसमें वुसअत के दरवाजे खुलते हैं, इसमें बख्त के दरवाजे खुलते हैं, इसमें बरकत के दरवाजे खुलते हैं, इसमें रिस्क के दरवाजे, इसमें बख्त के दरवाजे, इसमें बरकत के दरवाजे खुलते हैं। हाँ, रिस्क के दरवाजे, बख्त के दरवाजे, बरकत के दरवाजे खुलते हैं। बख्त के, रिस्क के, बख्त के, बरकत के दरवाजे खुलते हैं। ये सुबह का लम्हा है, बस देख लें। ये सुबह का वक्त है, आप देख लें कि लोग चाहते हैं हजरत फलां अमल की तासीर दे दे, कई लोग कहते हैं फलां वजीफे की तासीर दे दे, कई लोग कहते हैं ये मैं एक मन्नत मान के आया हूं तस्बीह खाने में, मेरा ये काम हो जाए, मेरा कर्जा, मेरी शादी, मेरा निजाम कोई भी ये हो जाए, ये हो जाए। वो देखो बंदा सो रहा है, मान के आते हैं, मानते नहीं। मन्नत मान के आते हैं पर मानते नहीं। गहराइयों में जाएं, दुनिया के किसी कोने में आप रह रहे हैं, जब तक मुजाहिदे की गहराइयों में नहीं जाए, मुजाहिदे की, अमल हो और अमल का मुजाहिदा हो। देखो, ये मुअज्जिन है ना, मुअज्जिन, मुअज्जिन, इसके कानों में उंगलियां होती हैं। दुनिया जहान की कोई बात हो, ये जब तक अजान पूरी नहीं करेगा आपकी किसी बात का ना जवाब देगा, ना सुनेगा, ना बोलेगा। है, कानों में उंगलियां इसलिए होती, हमारी मौत तक की कानों में उंगली है। मुअज्जिन एक पैगाम देता है,
मुअज्जिन एक पैगाम देता है, मुअज्जिन एक पैगाम देता है कि उस वक्त तक जब तक के कानों में उंगलियां, इसलिए इसलिए जनाजे में अजान और तकबीर नहीं होती, वो पहले हो चुकी होती है। दाएं कान में अजान, बाएं कान में बोले, इसलिए जनाजे में अजान और तकबीर नहीं होती। बच्चा जब पैदा होता है उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में तकबीर, इसलिए जनाजे में अजान और तकबीर नहीं होती, वो पहले हो चुकी है। कहा कि शहजादी को देव उठा के ले गया, बादशाह ने ऐलान किया, बादशाह ने ऐलान किया, बादशाह ने ऐलान किया कि कोई उसको छुड़ा के ले आए। जो भी जाता था पत्थर का बन जाता था। एक बंदे ने कहा मैं भी किस्मत आजमाई करूं, किस्मत आजमाई करूं, मैं भी किस्मत आजमाई करूं। आगे गया तो एक दुर्वेश मिले, दुर्वेश फरमाने लगे, दुर्वेश, उन्होंने कहा कि दुर्वेश फरमाने लगे कि याद रख दाएं बाएं ना देखना, दाएं बाएं की आवाज ना सुनना। तूने अगर दाएं बाएं देखा, दाएं बाएं की आवाज सुनी, पत्थर का हो जाएगा। ये जितने भी आए थे इन्होंने दाएं बाएं की आवाज सुनी थी। कहां गया था तस्बीह खाने, क्या पड़ा है वहां, ये रोजे तस्बीहां तो घर नहीं रख सकता, ये नमाजें घर नहीं पढ़ सकता। दाएं बाएं की आवाज ना सुनना, नींद गफलत की आवाज ना सुनना, गफलत की आवाज ना सुनना। और वो गया और शहजादी को, एक कहानी है लेकिन यह हकीकत है। मेरे दोस्तों, किसी भी इल्म की गहराई तक पहुंचने के लिए, इल्म की गहराई तक पहुंच, इल्म की गहराई तक पहुंचने के लिए, अगर पहुंचना है इल्म की गहराई तक, तो उसके लिए मिजाज में कुर्बानी, जिसे कहते हैं नफ्स का मुजाहिदा। दिल चाह रहा सो जा, दिल चाह रहा बैठ जा, दिल चाह रहा भाग जा, दिल दिल जो चाह रहा, नफ्स के मुजाहिदे को। अच्छे खासे खिदमत करने वाले मैंने मजमे में देखे हैं, हर साल खिदमत करते थे, बेहतरीन मजमे में बैठे भी हैं, सो भी रहे हैं, खिदमत में नहीं जा रहे। नफ्स का मुजाहिदा जब तक नहीं आएगा उस वक्त तक रूह की दुनिया नहीं खुलेगी। कहते हैं सारी सारी रात आंखों में पानी मार मार के मैं जागता था, पढ़ता था, इसलिए मैंने डॉक्टरी पास की। कहने लगा गुर्बत थी, रक्षा चलाता था, पढ़ता था, पैसे नहीं होते थे, कुर्बानियां कर करके मैंने ये डॉक्टरी या इंजीनियरिंग या ये डिग्री पास की है। ऐसे है या नहीं है? दुनिया कुर्बानी कर करके डिग्रियां या दुनिया की चीजें लेते हैं, कुर्बानी कर करके, कुर्बानी कर करके। रूह की दुनिया में मैं आपकी मिन्नत कर रहा हूं, दरखास्त कर रहा हूं, अगर रूह की दुनिया में कुर्बानी ना की तो जिंदगी ऐसे गुजर जाएगी और नुकसान होगा। ना गुजरे और जाते जाते ना एक मेरा पैगाम सुनते जाएं, अपनी नस्लों को हम गुर्बत, तंगदस्ती, फक्र, बीमारियां, दुख दे के ना जाएं। अपनी नस्लों को वो उस वक्त देंगे जब अल्लाह के वादों को पूरा नहीं करेंगे। अल्लाह कहता है ये अमल कर, मैं इस अमल के बदले में तुझे ये बख्त, बरकत, ये रिस्क दूंगा। ये बाबा जी को उठाए, ये आपके साथ है, ये बाबा जी जो आप मुझे देख रहे हैं, ये बाबा मलूदी ये बैठा, हाँ ये मेरी अर्ज ये है, ये वक्त आज मैं आखिरी दर्स से मैं सुबह का नहीं आया करूंगा, इंशाअल्लाह सुबह कोई और बंदा आएगा, आपका नुकसान हो जाएगा, मेरे मुंह से बददुआ निकल जाएगी।
आपका नुकसान हो जाएगा। मैं फकीर हूं, मुझे अपनी कोई विलायत का दावा नहीं है, मेरी क्या हैसियत है मैं दुआएं दूं? मैं दुआ देने वाला फकीर नहीं हूं, मैं दुआएं देने वाला फकीर हूं। खुदा ना खास्ता निकल ना जाए, मैं दुआएं देता हूं, मैं तो दुश्मनों को दुआएं देता हूं। सुबह इंशाअल्लाह तस्बीह खाने का खादिम होगा, आपको जिक्र करा दिया करेगा आपके आराम में। मैं पूरा रमजान थक गया हूं। आज मैंने मुलाकातों की तरतीब आपकी बनाई हुई थी, दोपहर को वो भी नहीं होगी, जिसने जाना है चला जाए। अल्लाह वालो, थक गया हूं मैं। आधा रमजान मिन्नतें कर 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 के सुबह, यानी मैं सुबह मजामीन को भी समेटूं और आपको भी उठाऊं, आपको भी समेटूं, और मतलब सिर्फ आपका नुकसान है, मकसद यह है आपका नुकसान ना हो, आपका नफा हो, आपकी खैरखाही हो। मेरा ना आना भी आपकी खैरखाही होगा, आपकी खैरखाही मतलूब है। उठाता हूं तो दर्द मतलूब है, आपकी मिन्नत करता हूं तो भी यह मकसद है, यही मतलब है कि आए हैं अपनी नस्लों के लिए, अपने घर के लिए, बख्त के लिए, कुछ बरकतों के दरवाजे अल्लाह से खुलवा के जाए। मैं तो फकीर आदमी हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मुझे अपनी बद्दुआओं का क्या दावा हो सकता है, मुझे अपनी दुआओं का क्या दावा हो सकता है। लेकिन बाज़ औक़ात विजदान की कैफियत में, बेसाख्तगी में कोई चीज निकल जाए, मैं तो अपनी बात जात के बारे में डरता हूं, अपनी जात के बारे में डरता हूं, बहुत डरता हूं। मेरी क्या हैसियत है। अल्लाह पाक आपको आबाद और शाद रखे, अल्लाह पाक खैर अता फरमाए। आधा रमजान बहुत मेहनत की सुबह मैंने, मेरे ऊपर एक तरफ मजामीन होते हैं, एक तरफ सोने वाला मजमा है। मैं किसको सुनाऊंगा? सोतों को सुनाऊंगा? सोचे तो सही, सारा मजमा सो रहा है, आपकी तरफ कोई अगर सिर्फ ना देखे ना, आपको गुस्सा आता है। बात मैं तुझसे कर रहा हूं तो उधर उधर देख रहा है। मैंने कई लोगों को देखा, इस बात पे गुस्सा आ गया। अल्लाह वालों, मेरी बात नहीं, उस अल्लाह उसके हबीब की बात है, मेरी बात नहीं, अल्लाह उसके हबीब की बात है। आपके आराम का वक्त होता है, दूसरा आराम शुरू है, रात के बाद अभी दूसरा आराम शुरू है, फिर जुहद के बाद तीसरा आराम शुरू है, फिर असर के बाद चौथा आराम शुरू है, फिर मगरिब के बाद पांचवा आराम शुरू है। अभी आपके दूसरे आराम का वक्त है और मैं आके खलल डालता हूँ। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। सलाम।